page talks about the Sania Mirza. Newspaper जब देखे आप Hindu newspaper, the very first page talks about Sania Mirza. Why Sania Mirza is in news? She has taken the retirement. She has taken the retirement. So you might get a question because you are writing here. She is one of the sports tennis में है. उसका achievement दिया I have given the achievement of Sania Mirza in one slide. Sania Mirza 2015 Wimbledon. She won 2015 Wimbledon. Then number 1 for 91 weeks. She was number 1 for 91 weeks. 2005 she won the 2005 WTA Hyderabad Open Women's Singles. So by this she got the fame. Then you have got, then she has won in total 14 medals. इसमें 8 Asiads में जीते, plus 4 Afro-Asian Games, plus 2 in Commonwealth Games. Then her career best was world ranking number 27 in 2007. Then she has won Grand Slam trophies. She has won Grand Slam trophies. She has won Australian Open in 2009, French Open in 2012, US Open in 2014, and with Martina Hingis she won the Wimbledon in 2015. She has won this Wimbledon twice, and that is twice with Martina Hingis and once Australian Open. Thrice, ठीक है? So these are the some of the achievements of Sania Mirza. It won't be asked from where she is or anything, but her career would be, अगर आप एक लाइन में बोले, if you want to see in one line, but it's her achievements. The second news which is in news, Sundarban's temple. Sundarban's temple, the first page पे है. Sundarban's temple, देखिए Sundarban's temple कौन से एरिया में? The questions might be what I have given one line में दिया आपको पूरा जो भी होना है. Sundarban's temple, it is of 11th century. It is of 11th century and it is made up of terracotta. Terracotta माने जो मट्टी से बनी हुई रहती. Terracotta के टॉयज भी बनते. मट्टी से जो बनी हुई रहती उसको बोलते हैं terracotta. Now why it is in news? Because it is being corroded. Corrosion से वो खराब हो जा रही चीज. ठीक है. So it is in West Bengal. Now it is a temple. Temple should belong to one of the deity. It belongs to Shiva temple. The deity is Shiva. Then its name, their local name is Jatar Diol. Jatar Diol. और कोई भी टेम्पल देखिए, whenever there was settlement, if अगर कोई भी settlement है, the settlement कहाँ रहता? अगर आपको कोई सेटल होना है, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? हमने किराए के घर में कौन कौन है किराए के घर में? हमने फिर इन रेंटेड हाउस. अगर आपको रेंट का घर देखना है आपको, तो so we are seeing the Sundarban temple. Sundarban temple is what century? 11th century का है. This temple is of 11th century. It is made up of terracotta. Now it is in shambles. It is being shambles. Then because of the corrosion. Because of the कौन सा corrosion है? It is because of air salinity. Because of air salinity. It is in West Bengal. It is big temple. This temple belongs to which deity? Shiva temple. वो एरिया का नाम क्या है और ये टेम्पल का वो लोकल नेम क्या है? जातर दियोल. और कोई भी सेटलमेंट है, whatever the settlement will be on a river side. अगर आप कोई घर देख रहे तो सबसे पहले क्या पूछते? पानी है क्या पूछते पहले? नल तो बाद में है, पर पानी आ रहा है क्या पूछते? क्या 24 घंटे आ रहा है या एक बार आता होंगे? बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको सेटल होना है, अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशंस भी देखें, आप इंडिया वर्ल्ड की डिफरेंट सिविलाइजेशंस देखो, आप पूरे सिविलाइजेशंस क्या है? एक रिवर के तरफ है. अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देखें, इंडस रिवर है. चाइनीज सिविलाइजेशन देखिए, रिवर के साइड है. अगर आप इराक अफ्रीका भी देखिए, रिवर टिग्रिस के साइड है. तो सबसे पहले जो इंसान सेटल हुआ वो कहाँ सेटल हुआ? पानी के पास ही.
सो कोई भी ये मंदिर भी जो बना रहे, और इन एवरी रिलीजन वाटर प्लेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चाहे आप कौन सा भी रिलीजन ले लीजिए, वाटर प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो कोई भी सेटलमेंट था, इट इज बेस्ड ऑन रिवर बैंक, इज बेस्ड ऑन रिवर बैंक। ये क्वेश्चन आ सकता है, सुंदरबन टेम्पल इन जातर देवल इज ऑन विच रिवर? इट इज ऑन रिवर मोनी, इट इज ऑन रिवर मोनी, एंड इट इज बीइंग करोडेड, करोजन से खराब हो रहा हो, और वो रीजन क्या है करोजन का? एयर सैलिनेट। तो आपको इसमें घुमा के कौन सा भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, बिकॉज आई हैव मेड दिस नोट्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चाहे आप यूपीएससी भी लिख रहे हैं, आपको कुछ मदद होती है एयर सैलिनिटी के क्या है, ठीक है। देन ये जितने भी हेरिटेज साइट्स है, लास्ट क्लास में वी हैव टॉक्ड अबाउट द कल्चर, ठीक है। कल्चर क्या है अपनी, क्या है? हेरिटेज है। हेरिटेज इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज योर टैंजिबल हेरिटेज, अनदर वन इज इंटैंजिबल हेरिटेज। टैंजिबल हेरिटेज क्या है? जो आप देख सकते, ये टेम्पल जो भी है ये क्या है? टैंजिबल हेरिटेज है, विच यू कैन सी। सो ये पूरे हेरिटेज की जिम्मेदारी किसकी है इंडिया में? इट इज ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस पे क्वेश्चन आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन से कल्चर के अंडर आता, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आपका होमवर्क क्या रहता? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का मिनिस्टर कौन है? कोई मिनिस्टर ऑफ, कोई भी मिनिस्ट्री पढ़ रहे आप, उसके आप उसका मिनिस्टर मालूम रख कर लेना। क्यों? तो देखिए, दिस क्वेश्चन माइट नॉट कम डायरेक्टली, लेकिन आपको एलिमिनेट करने में ऑप्शंस आसान हो जाते हैं। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दो मालूम है, तो आप ये मालूम है कि आप, ठीक है, ये आदमी इसका नहीं होता, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का मिनिस्टर कौन है मालूम कर लेना। देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ? इट वाज एस्टैब्लिश इन 1861 बाय whom? अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। और हेडक्वार्टर्स किधर है? न्यू दिल्ली। और प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है? विद्यावती IAS, ठीक है। इतने चीजें मालूम कर लिए, इट्स मोर देन इनफ फॉर यू। So, Archaeological Survey of India under Ministry of Culture, it was established in 1861 by Alexander Cunningham. Headquarters is at New Delhi. Its present Director General is V. Vidyavati IAS. आप करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ आ रही उसका हिस्ट्री देख लेना आप जाकर, ठीक है। तो ऐसे ही कनेक्ट करें तो आपका GS भी कवर हो जाता, जनरल स्टडीज भी कवर हो जाते, और करंट अफेयर्स भी कवर हो जाते। आपको क्वेश्चन कोई भी इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं आता। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग क्या सीखना है? करंट अफेयर्स में से जो न्यूज़ आई, वो न्यूज़ को आज कैसा कनेक्ट करते हैं आप। एवरीथिंग, एवरी क्वेश्चन इज बिकॉज ऑफ ए रीजन। ये कुछ हुआ होगा, कॉज एंड इफेक्ट रहता, ये कुछ हुआ तो ही वो न्यूज़ में है आपके। वही जनरल स्टडीज में भी आते हैं। अपन क्या करते हैं गलती, पूरा जनरल स्टडीज पढ़ने को जाते, पूरा हार्डवर्क करते, करंट अफेयर्स को भूल जाते। करंट अफेयर्स एक बार, करंट अफेयर्स ऐसा जड़ है, इसके शाखा सब में है, लेकिन उसमें आपको पॉइंट आउट करने आना। करंट अफेयर्स में नेशनल, इंटरनेशनल हो गया, नेशनल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, रीजनल हो गया, हर चीज़। आज आप सानिया मिर्जा की बात करें, सानिया मिर्जा इंटरनेशनल भी हो गया, नेशनल भी हो गया, स्पोर्ट्स भी हो गया, रीजनल भी हो गया। सानिया मिर्जा बिलोंग्स टू विच कंट्री? इंडिया। रीजनल की बात करें तो हैदराबाद। सो यू हैव टू कनेक्ट इट। और उसके वर्ल्ड रैंकिंग नंबर कौन से थे? 2007 में क्या वर्ल्ड रैंकिंग थी? नाउ शी हैज रिटायर्ड नाउ। सो सुंदरबन टेम्पल नेशनल बात कर रहे हैं आप, स्टेट की बात करें तो रीजनल हो गया। सुंदरबन टेम्पल्स इट्स कल्चर में भी आ गया वो, प्लस नेशनल न्यूज में भी आ गया। देन यू हैव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इट इज इन कल्चर, ठीक है। और इंस्टीट्यूशंस, कल्चर एंड इंस्टीट्यूशंस। देन यू हैव भारत जोड़ो यात्रा, फोर्थ पॉइंट। नाउ व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा? टुडे इट गॉट कल्मिनेटेड, आज खत्म हो गई, एंड टुमारो इट विल बी ऑफिशियल क्लोजिंग सेरेमनी। सो भारत जोड़ो यात्रा कब स्टार्ट हुई थी? 7 सितंबर 2022। एक हिस्ट्री लिख दी, हिस्ट्री हो गई इसमें। अब अगर ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट 30 साल तक आता, नेक्स्ट 30 साल तक अभी तक, क्यों? अगर आपको एक ज़माने में शंकराचार्य इन 1000 साल पहले, 500 साल, 700 साल पहले, एंशिएंट इंडिया में, ही केम फ्रॉम कन्याकुमारी टू
कश्मीर